السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور۔ 28واں پارہ ہے اور اس میں سورۃ تغابن کی شروع کی 4 آیات تک سامنے تلاوت کی گئی، آیت نمبر 1 سے 4 تک۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہیں ہر وہ چیز جو آسمانوں اور جو زمین میں ہیں۔ لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ہر قسم کی حمد ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر خوب اچھی طریقے سے قادر ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اللہ کی ذات وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، کہ تم میں سے کوئی کافر کوئی مومن ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم، اس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور تمہیں صورت دی تو تمہاری صورتیں بہت اچھی بنائی۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور تم جو ظاہر کرتے ہو۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ کی ذات وہ ہے جو سینوں کے راز کو بھی خوب اچھی طریقے سے جانتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں اپنی کچھ قدرت کے نظاروں کا تذکرہ کیا، مظاہر کا تذکرہ کیا۔ یقیناً وہ اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے بات زیبا ہے کہ وہ جو کچھ اپنے بندوں کے لیے بناتی ہے یا ان کو بطور نعمت دیتی ہے، اس کا ذکر کرنا، اس احسان کو یاد دلانا، اس کو بارہا بندوں کے سامنے کھڑا کر کے سنایا جانا، یہ اس کے لیے زیبا ہے اور یہ سب بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی انگنت نعمتیں ہم نے پائی ہیں اور اس کا استعمال بھی کرتے ہیں، اور بہت سے نعمتیں ایسے ہیں جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن جب وہ نعمت چھن جاتی ہے تب ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ واقعی یہ بھی ایک اللہ کی نعمت تھی اور ہم نے احساس بھی نہیں ہوا۔ آج جب وہ چھن گئی تب بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیگر صورتوں کی طرح صورت کی بھی ابتدا اپنی حمد و ثنا تسبیح کی تذکرے کے ساتھ کی، خبر دیتے ہوئے کیا کہا کہ آسمان اور زمین میں جتنی مخلوق ہے سب کی سب اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس کے انداز ہر مخلوق کتنے الگ ہے، آواز ہر مخلوق کتنی الگ ہے، کوئی بے آوازی تسبیح بیان کرتی ہے، کوئی آواز کے ساتھ ہی کرتی ہے، لیکن جتنی مخلوق ہے سب کی سب سوائے انسان اور جنات کو چھوڑ کر کے سب اللہ کی بندگی، اس کی تسبیح، اس کی حمد اور اس کی بڑائی کی بریائی بیان کرتی ہے، اور اس کی ذاتی بھی ذات کے لائق ہے اور اس کے حقیقی معنی میں اس کی ذاتی ہے، اس کا کوئی اور نہیں ہو سکتے۔ انسان اور جنات میں کچھ ہیں جو اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی بڑائی، اس کی عبادت وغیرہ کرتے ہیں، بہت سارے نہیں کرتے ہیں، دیگر اور مخلوقات کی دیگر اور جو ہے چیزوں کی بت کی معبودات باطلہ کی عبادت و بندگی میں لگے ہوئے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا آسمان اور زمین میں جتنی مخلوق ہے سب کے سب اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔
लहुल मुल्क व लहुल हम्द, उसी के लिए बादशाहत है और उसी के लिए हर किस्म की हम्द सना है। आदि बात से बादशाहत का हकदार वही है हकीकी मायने में, तो लाजिम तारीफ के हकीकी हकदार भी वही होगा। वो सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि बादशाह का बादशाह है, यानी पूरी दुनिया की मिल्कियत और सारी चीजें उसी के हाथ में। इंसान दुनिया के अंदर कहीं पर हुकूमत करता है तो एक लिमिटेड रहती है, टाइम की भी लिमिट रहती है, उम्र की भी लिमिट रहती है जो मुकद्दर में होता है, एरिया भी लिमिटेड होता है जो उसके इहाते में आता है, और मखलूक भी जो उसके मताबे हैं वो भी लिमिटेड होती है। कोई चीज परमानेंट नहीं है, और उस चीज को हासिल करने के लिए आदमी जंगोजियार करता है, मेहनत जफाकशी का मुजाहरा करता है, और चाहे कभी कभार उसमें धोखाबाजी के भी काम करता है, धोखे से काम लेता है। गर्ज है कि ये दुनिया की सत्ता और हुकूमतें लेने के तौर पर लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की कुव्वत उसके बादशाह ऐसे नहीं है, वो इन तमाम चीजों से पाक है और सारी दुनिया की का बादशाह है, सारे बादशाहों का बादशाह, जिसे शहंशाह कहा जाता है, यानी अपनी अपनी जुबान के अंदर लहुल मुल्क व लहुल हम्द, और उसी के लिए हर किस्म का बादशाह है और हम्द सना है, वह हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, वह हर चीज पर अच्छी तरह से कादिर कि किन किन मखलूक़ात अपनी इबादत और बंदगी के लिए लगाना और किसकी बादशाह छीनना, किसको बादशाह देना, हर तमाम किस्म के इख्तियार, कुदरत और पावर उसी के पास है, हर चीज पर कादिर है। हुवल्लज़ी खलक़कुम फमिनकुम काफिरुन व मिनकुम मुमिन, अल्लाह ने अपनी तारीफ अपने तारुफ भी बयान करके फरमाया बंदों के सामने, अल्लाह की बात वही है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें पैदा किया। हुवल्लज़ी खलक़कुम फमिनकुम काफिरुन व मिनकुम मुमिन, फिर उसके बाद तुमने से कोई काफिर है कोई मोमिन है। हमने तो फितरत सलीमा पर पैदा किया, इस्लाम की जो फितरत सलीमा है, एक अल्लाह की इबादत करना, एक अल्लाह ही को पूजना, ये जो और ये अपने खालिक को नहीं भूलना, हमने इसी पर पैदा किया। लेकिन इसके बावजूद इंसान जब बड़ा होता है धीरे धीरे होश हवास आती है, तो फिर अगर वो मुसलमान घराने में पैदा हुआ तो उमूमन वो मुसलमान ही बाकी रहता है, और अगर काफिरों के घर में पैदा तो उमूमन वो काफिर ही रहता है। फमिनकुम काफिरुन व मिनकुम मुमिन, तो ये इंसान के इख्तियार में, वो जिस रास्ते पर चलना चाहे चाहे उसकी मर्जी है। हमने तो पैदा किया तो फितरत सलीमा को ही, इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया किसी के कि जब इंसान जिस घराने में पैदा होता है तो वो उसके माँ बाप के मजहब के मुताबिक हो जाता है। फ़अबवाहु युहव्विदानी अव युनस्सिरानी व युमज्जिसानी, उसके माँ बाप यहूदी होते हैं तो भी यहूदी हो जाता है, उसके माँ बाप नसरानी होते हैं क्रिश्चियन होते तो क्रिश्चियन हो जाता है, अगर उसके माँ बाप मजूसी होते हैं तो मजूसी हो जाता है। यही निजाम, और फिर अल्लाह ताला अगर उनमें से किसी को नहीं तौफीक देने की हिदायत दे तो फिर वो बाकी मज़ाहिब को छोड़ करके इस्लाम के दायरे के अंदर दाखिल हो जाता है जो उससे अहाता होता है। तो अल्लाह ने फमिनकुम काफिरुन व मिनकुम मुमिन, तो उनमें बहुत सारे मोमिन है बहुत सारे काफिर भी। अल्लाह बिमा तअमलून बसीर, अल्लाह फरमाते जो तुम अमल कर रहे हो अल्लाह से खूब अच्छी तरह देख रहा है, तुम क्या अमल कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किसके नाम पर कर रहे हो, सारी चीजें अल्लाह का बेहतरीन अंदाज अच्छी तरह वाकिफ है। ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी मखलूक़ात पर जब उसने निगाह रखा होगा, हो सकता है मैं उसकी आंखों से थोड़ा ओझल हो गया होगा, मैं छोटा छुप के गुनाह कर लेकर नहीं देखा होगा, नहीं, हर जर्रे पर उसकी निगाह है, हर जर्रे पर उसकी निगाह है। रात की अंधेरी हो, अंधेरी कोठरी हो, छुप के अकेले करने कहा हो, कोई नहीं हो, कोई मखलूक नहीं देख रही हो, लेकिन वो रब जरूर देख रहा है। अल्लाह बिमा तअमलून बसीर, उसका पावर इस कदर मजबूत है। खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़, अल्लाह ने उसने आसमान और जमीन को हक के साथ पैदा किया, यानी बेकार से नहीं पैदा किया। इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा आसमान जिसके बारे में अल्लाह ने कहा कि तुम देखो तो आसमान में कहीं पर कोई शिगाफ है, कोई सुराख अगर देखो तो सही है, कहीं पर नजर आ रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बेकार करने नहीं पैदा की, इसके पैदा करने के बड़े मकासद है। अल्लाह ने फिर कहा 29वें पारे में सूरह मुल्क के अंदर, देखो आसमान में, दोबारा देखो, तुम्हारी आंखें खायब और खास होकर के लौट जाएंगी, आसमान में कोई तुम नफ्स नहीं निकाल पाओगे, कोई नफ्स नहीं निकाल पाओगे, कोई सुराख नहीं तलाश कर पाओगे। अल्लाह अकबर। तो इसीलिए अल्लाह ने कहा खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़, हमने हक के साथ पैदा किया आसमान और जमीन को, खेल तमाशे के लिए नहीं। वसव्वरकुम फअहसना सुवरकुम, और
तुम्हें सूरत दी हमने, बेहतरीन सूरत दी। और सव्वरकुम फअहसन, हमने तुम्हें सूरत दी, चेहरा बनाया, तुम्हारा जिस्म का, तुमको तुम्हारे जिस्म को हमने ढाला, बेहतरीन अंदाज में डाला, ऐसे नहीं ढाला। अब इंसानों में कितने किस्म के चेहरे हैं, कितने किस्म के रंग हैं, कितने किस्म के रूप है, हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी सब अपने आप में बड़े खूबसूरत, उसके बावजूद भी सब अपने आप में खूबसूरत। अगर कोई आदमी समझता है कि अल्लाह ने मुझे बदनुमा बनाया, बदशक्ल बनाया, तो जरा किसी जानवर को पकड़ करके उसके सामने ठहरे, आना लेकर के, और वो देखे इस जानवर का चेहरा कैसा, मेरा चेहरा कैसा है। अगर अल्लाह इस जानवर को जैसे बनाता तो क्या होता, लेकिन अल्लाह ने वैसा नहीं बनाया। बेहतरीन चेहरा, उसमें नाक, आंख, कान और मुंह, दांत, सारी चीजें अल्लाह ने दी। तो इस जान को अल्लाह ने जैसे बनाया उस पर खुश होकर राजी होना चाहिए। और सव्वरकुम फअहसन, इसीलिए अल्लाह ने दूसरी का हुक्म है, अल्लज़ी खलक़ल इंसान फी अहसनि तक़वीम, अल्लाह की ज़ात है जिसने इंसान को बेहतरीन सांचे में डाला, बेहतरीन सांचे में डाला। ये उसकी कुव्वत है, उसकी कुदरत है। मज़ीद अल्लाह ने फ़ौइल वसील, हाँ सुनो, जो तुम्हारा जिस्म, ये सारी चीजें हैं दुनिया में जब तक है तो तब तक है ढांचा, और उसी के तुम्हें तरफ करके आना चाहिए दोबारा। तुम्हारा जिस्म ये मलियामेट हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, सड़ जाएगा, गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा मौत के बाद, और लेकिन अल्लाह के हुजूर आना है। तो लिहाजा ना इस जिस्म को इतराना है, न इस सूरत पे नाश करना है, न इस शक्ल पे फख्र करना है, बल्कि जो है सबसे अहम दिल, जो दिल है जिस्म के अंदर, उसकी हिफाजत करना है। क्योंकि यहां तकवा अगर होगा तो सब अच्छा होगा, वो नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो लिहाजा वही मसीह उसी तक लौट करके आना है। इस बात करो अल्लाह की बात है जो आसमान और जमीन में है, वो हर चीज अहम लगती है, और इतना अहम लगती है जो तुम छुपाते हो, जो तुम जाहिर करते हो, जो कुछ तुम छुपाते हो, जो तुम जाहिर करते हो, सारी बातें मैं जानती हूँ। आप बाजू बैठे, मैं आप बाजू बैठे, मेरे दिल में क्या चल रहा आपको नहीं, आपके दिल में क्या चल रहा मुझे नहीं मालूम। लेकिन हमने से जितने इस महफिल में बैठे हैं, दुनिया के जिस खत्ते में बैठे हैं, हर हर फर्द के दिल में क्या चल रहा वो जानता है। या लोग रोना वमा करो अल्लाह अलीम बिज़ाति सुदूर, इसीलिए उसने कहा कि अल्लाह की ज़ात वो है जो तुम्हारे सीनों के भेद को जानती है। अच्छा, जो तुम छुपाते, तुम जानते, बयान करते हो, ये तो जुबानी मामला है। कभी क्या होता है, आदमी किसी एक फर्द को बोलता है, सारी दुनिया से छुपा लेता है। माँ बाप को बोलता है, किसी को नहीं बोलता है। दोस्त को बोलता है, कभी किसी और को नहीं बोलता। बीवी को बोलता है, कभी किसी और को नहीं बोलता। किसी अपने बच्चे को बोलता है, किसी को नहीं बोलता, छुपा देता है। लेकिन अल्लाह की ज़ात है, तुम जुबानी किसी एक इंसान को बताओ, सबसे छुपा दुनिया से, अल्लाह सुनता देगा। तुम किसी को ना बताओ, तुम्हारे दिल के अंदर ही रह जाए वो बात। अल्लाह अलीम बिज़ाति सुदूर, अभी वो सीनों के, तुम्हारे सीनों के दिलों की बात को जानने वाला है। अल्लाह की ज़ात क़ुव्वत वाली है, इतनी बेहतरीन अल्लाह की ज़ात है, निराली है, और वो आला है, वो अरफा है, उसकी जैसी कोई ज़ात नहीं। लिहाजा उस पर ईमान ला जाए, उसी की इबादत की जाए, और इन सारे मामलात में सारी चीजें उसी के हवाले की जाए, और उसकी कुदरत कामिला पर यकीन रखा जाए। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल इज्जत हम तमाम को इस्लाम के बात में, ईमान के मामले में मजबूती अता फरमा, और उसकी तेरी ज़ात पर हमें कामिल यकीन और भरोसा रखने वाला हमें बना। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।